Good morning, student. Today in our second standard, we are going to complete our this chapter. We are learning about the food for health. We discussed that there are two main sources of food. One source is the plant source. Second source is the animal source. Okay, so we get different foodstuffs from the animals as well as we get food from the plants also. That is why these are the two sources of food. Afterwards, we also discussed about the types of food. There are main three types of food: energy giving food, protective food, and bodybuilding food. And some foods are there which are full of water and fiber. So energy giving food are the foods that give energy to our body. They are called as the energy giving food. The food that protect our body from the diseases, they are called as protective foods. And the food that help us to build our muscles, to make our bones and muscles strong, that are called as the bodybuilding foods. And some of the fruits and vegetables, they are full of water, they are full of fibers, they are called as the water rich or fiber rich foods. Okay, so in this way we see that there are different types of food. So from this examples of these foods, I will give you the examples also. Rice, wheat, jawar, they are energy giving food. Different types of fruits, they are fruits. Eggs, they are the protective food. Meat, butter, they are the bodybuilding food. In this way there are different. And which are the water rich food? The fruits like watermelon, muskmelon, cucumber, they are full of water. Grapes, they are full of water. And along with that there are some other fruits also which have fiber in them, like apple, it has fibrous content. Along with that, mangoes are there, leafy vegetables are there, they are full of fibers in them. We also discussed the different types of people who eat the different food. Some people, they eat only plant and plant products. They are called as the vegetarian people. Some people, they eat plant product as well as they eat the meat and flesh of other animals. They are called as non-vegetarian people. And there are some people who do not eat flesh, etc., but they eat only eggs and other plant product. They are called as ovo-vegetarian. Okay, so before we eat the food, we cook it. Understand? Before we eat the food, we cook the food and we add some spices in them. And why we add spices in them? So that food should become tastier. Why we cook the food? So that food should become easy for digest. In this way, before we consume the food, we cook it, we add some spices in it and make it tasty as well as easy for digestion. So what are the spices used in our homes? In India, many spices they are used to make the food spicy. इंडिया में बहुत सारे स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि देर आर वी यूज़ चिलीज, ग्रीन चिली, रेड चिली, चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, etc. Along with that we use cardamom, cloves, black pepper, salt, turmeric, oil. These all are the spices, different black salt, etc. So there are a number of spices. If we make a list, it will be quite a lengthy list that is used especially in India. In Indian cooking, we see that many different spices they are used, and in this way the food is made tastier and easy to digest. Spices are added to the food to give it flavor. They make the food tasty and also color to it. These spices, they add a taste as well as they make the food colorful, like chili, turmeric, cloves, pepper, etc. Meals eaten in a day. So how many times generally we eat in a day? We eat 3 times a day. In the morning we take breakfast, in the afternoon we take lunch, at night time we take dinner. Okay, so in this way we eat. Some people, they may eat in between
lunch and dinner, they used to take some snacks also. But generally, it is seen that mostly we eat only three times a day. In between, Indian people they have the habit to have tea, etc. Elderly people, तुमने घर में देखा होगा कि जो दादा दादी वगैरह होते हैं या फिर मम्मी पापा भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले टी लेते हैं, फिर आफ्टरनून में भी लंच होने के बाद 1-2-3 घंटे के बाद फिर से टी लेते हैं. तो ये आदत होती है किसी किसी घरों में. At different times, we eat three major meals in a day. Breakfast. It is the first meal eaten in the day. We must never skip breakfast. सबसे पहला मील कौन सा है हमारे डे का? सबसे पहला मील है हमारा ब्रेकफास्ट, क्योंकि रात में हम खाना खाते हैं फिर उसके बाद सो जाते हैं. तो मॉर्निंग में उठने तक, मतलब सपोज इन जनरल हमने 8 o'clock खाना खाया या 9 o'clock भी खाना खाया. देखो रात का जो डिनर है वो बहुत लेट नहीं खाना चाहिए. बहुत लेट खाना खाने से डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता और फिर फूड जो है वो जैसे कि वैसे रह जाता है. फिर कभी स्टमक पेन होता है, कभी वोमिटिंग होते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए जहाँ तक हो सके जो डिनर है वो 8 या 9 के अराउंड हमें फिनिश कर लेना चाहिए. फिर सपोज किसी ने अगर 8 o'clock खाना खाया रात में, 8 o'clock या 8 and 9 के बीच में खाना खाया हुआ है, तो मॉर्निंग में जब वो उठते हैं 7-8 बजे, वैसे तो मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, लेकिन फिर भी हम जल्दी भी उठते हैं तो भी हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो 8 या 9 के बीच में हम कर लेते हैं. मतलब 12 आवर्स का जैसे नियरली गैप होता है. दिन में तो हम 3 बार खा लेते हैं, लेकिन रात के टाइम हम सो जाते हैं तो रात के जो 12 आवर्स हैं उस रात के 12 आवर में हम कुछ नहीं खाते. तो एक लंबा ब्रेक हमारे पेट को मिलता है, इसीलिए उसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है. फास्ट रखना मतलब भूखा रहना. जो हम भूखे रहते हैं उसको तोड़ के हम कुछ खा लेते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकफास्ट, ब्रेक द फास्ट. देन लंच. इट इज़ ईटन इन द आफ्टरनून. जहाँ तक हो सके सभी को थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ ऐसे हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए. हेवी नहीं लेकिन हेल्दी ब्रेकफास्ट तो करना चाहिए. देन डिनर. इट इज़ लास्ट मील ऑफ द डे ईटन एट नाइट. वी मस्ट कीप इट वेरी लाइट. रात को हम सोने जाते हैं, रात में ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, इसीलिए जहाँ तक हो सके रात का जो लंच रात का जो डिनर है वो हमेशा लाइट इन द सेंस हल्का फुल्का कुछ तो एक, आइदर राइस खाओ या फिर रोटी खाओ, दोनों में से कोई एक, और थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, बहुत स्पाइसी, बहुत ऑयली ऐसे फूड नहीं खाना चाहिए रात के टाइम, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं होता प्रॉपरली, वो डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली. फैक्ट फाइंड. saffron is the most expensive spice in the world. A few strands of saffron are sufficient to give color and flavor. सैफरॉन जो है, जो कि कश्मीर में ग्रो किया जाता है, कश्मीर में सैफरॉन की बहुत, जैसे हमारे यहाँ पर हम अरहर, मूंग, जवार ग्रो करते हैं, वैसे कश्मीर में सैफरॉन बहुत ग्रो किया जाता है. तो ये जो सैफरॉन ग्रो करते हैं तो वो सबसे दुनिया का सबसे महंगा, सबसे एक्सपेंसिव स्पाइस अगर कौन सा है तो वो है सैफरॉन. उसके 2-3 स्ट्रैंड भी, मतलब उसके धागे जैसे रहते हैं, वो 1-2 धागे भी तुम अगर किसी चीज़ में डाल दो तो उसकी स्मेल और उसका कलर बहुत ही ब्यूटीफुल सैफरॉन सा कलर आता है उसका. जब वो मिल्क में या फूड डिशेस में हम उसको डालते हैं तो एक सैफरॉन सा कलर उसका फूड डिश में आ जाता है और उसकी स्मेल भी बहुत स्वीट सी होती है. तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव वाला स्पाइस है इंडिया में नहीं, सारे वर्ल्ड में. गोल्डन ईटिंग हैबिट्स. तो ये हो गए सारे क्या क्या खाना चाहिए, कैसे खाना, क्या हम खाते हैं, किस टाइप का फूड है. लेकिन फूड खाने की कुछ रूल्स है, दे आर कॉल्ड एज द गोल्डन रूल्स और गोल्डन हैबिट्स. To stay fit and healthy, we must follow these golden rules. Wash hands before and after your meals. Eat fresh and clean food. Eat food at fixed time in the day. Chew food properly and do not speak while eating.
क्या करना चाहिए? यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर योर मील्स। ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। हमेशा फूड जो हम खाते हैं वो फ्रेश होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। क्लीन यूटेंसिल में कुक किया हुआ, कवर करके रखा हुआ और क्लीन हाथों से सर्व किया हुआ फूड ही हमेशा खाना चाहिए। ईट फूड एट फिक्स्ड टाइम इन द डे। फूड खाने का भी टाइम है, मतलब हमारा जो लंच है, ब्रेकफास्ट है और डिनर है, ये भी फिक्स टाइम पे होना चाहिए। कंटिन्यू भी नहीं खाना चाहिए या बहुत ज़्यादा भी गैप नहीं लेना चाहिए। चू फूड प्रॉपरली एंड डू नॉट स्पीक वाइल ईटिंग। जब हम खाना खा रहे हैं तो बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं और बातें करते हैं तो फूड हमारे फूड पाइप में जाकर या फूड पाइप और हमारे यहाँ थ्रोट में फूड पाइप और इसके साइड में ही विंड पाइप होता है जिससे हम ब्रीदिंग करते हैं। तो जब हम फूड खाते खाते बातें भी करते हैं तो कभी कभी फूड जो है वो विंड पाइप में चला जाता है और फिर चोकिंग, इट कैन कॉज चोकिंग ऑफ अवर विंड पाइप। इसीलिए कभी भी खाना खाते टाइम बातें नहीं करना चाहिए। और खाना खाते टाइम बातें करेंगे तो कभी कभी जो हम फूड चू कर रहे हैं उसमें हमारी टंग भी आ जाती है, कभी कभी हमारे मुंह में जो हम चू कर रहे हैं वो फूड बाहर भी उड़ जाता है। इसीलिए कभी भी जब भी तुम कुछ खाते हो तो साइलेंट बैठ के खाना खाना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए फूड खाते टाइम। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग और कुकिंग। फूड खाना जो फूड हम पकाते हैं, कुक करते हैं, उसको कुक करने से पहले उसको वॉश करना चाहिए। फ्रूट्स भी मार्केट से जब हम फ्रूट्स लाते हैं तो पहले उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, फिर उसके बाद उसे खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट एंड डू नॉट वेस्ट फूड। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए प्लेट में और नहीं जा रहा मुझे बस नहीं, अभी मुझे बस हो गया, इतना मैं नहीं खा सकता, ऐसे करके प्लेट में फेंकना भी नहीं चाहिए, वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। फूड को कभी भी बहुत ज़्यादा खाएंगे तो टमी पेन होने लगता है, स्टमक पेन होता है और जो एक्स्ट्रा है वो फेंक देंगे तो मम्मी इतने एफर्ट से बनाती है, मम्मी के एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। पापा इतना मेहनत से कमाते हैं तो उनके भी एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर, अवॉइड ईटिंग जंक फूड। बहुत सारा पानी है, खाना खाने के टाइम नहीं, खाना होने के बाद जब तुम मील कर लेते हो, भोजन कर लेते हो, भोजन करने के बाद फिर एक हाफ एन आवर के बाद फिर वाटर लेना चाहिए और फिर बहुत पेट भर के पूरे दिन में भी बार बार क्लीन और फ्रेश वाटर ड्रिंक करना चाहिए। इससे डाइजेशन जो है वो अच्छा होता है। अंडरस्टैंड? हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर। Tomorrow I will send you questions from this chapter. Okay, so let's meet tomorrow again.